So good evening everyone and आज हमारे साथ है संजना राय. She is from Meghalaya, Shillong and she has her native roots in Nepal. तो mostly ये वीडियो इज़ अ वेरी बेसिक चिट चैट हमारे गेस्ट के साथ अबाउट द रेसिज्म फेस्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. एलपीयू में ही नहीं, ओवरऑल द सेंट्रल इंडिया वेर एवर दे गो दे फेस अ लॉट ऑफ रेसिज्म. एंड संजना हमारे साथ बहुत एक दो फनी स्टोरीज भी शेयर करेंगी जो मुझे याद है, जो मैं इनको याद दिला दूँगी. एंड लेट्स स्टार्ट राइट अवे. ओके, सो संजना, हैव यू एवर लाइक ऐसे नॉर्मली हैव यू एवर felt कि you are treated differently just because you are from Northeast? Well, definitely in mainland India, Northeast people are treated really badly. I wouldn't say really badly, it also depends on how you cope up with them. But it's like I'll share you an instance. So there was this guy, I had just joined the university and this guy came to me and said, okay, where are you from? And I said, I'm from Meghalaya, Shillong. And he said, आप लोगों के वहाँ तो कच्चा मीट खाते हैं तो हमें डर लगता है. So Okay. maybe that was a joke for him, but it was not. And I ended up saying we eat humans. And he had no comeback or no anything. He had no answer, so he just left. And there was one more instance when a guy came to me and he was like, okay, Shillong कहाँ है? So I said it's in northeast India, and all he said was वो कहाँ है? हमने तो नहीं देखा. So I had to literally like zoom in the India's map, and then I was like, this is the portion where Meghalaya is situated. So yeah, that was the instance, and I do feel कि racism बहुत ज़्यादा face करने को मिलता है, and it's not just with me, but I've also like seen this with my friends. सो एलपीयू में मेघालय स्टूडेंट यूनियन काइंड ऑफ थिंग है, जहाँ पे मेघालय के सारे बच्चे, ऑल द ट्राइबल किड्स एंड एवरीवन कम टुगेदर फॉर डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम्स, राइट? तो कहीं ना कहीं डू यू थिंक कि इट इज़ बिकॉज कि रेसिज्म फेस करना पड़ता है इवन इनसाइड द कैंपस? I wouldn't say specifically in LPU or in Punjab or any sort of that sort, but I honestly feel कि when you come to a place like you're away from home, you need someone to guide you. You want to feel homely. So अगर कोई भी ऐसे आपको अपने स्टेट से दिख जाते हैं तो ये होता है कि आपको ऐसी फीलिंग आती है कि कोई बात नहीं, ये है, मैं संभाल लूँगा. So Meghalaya Student Union is there to guide you. They won't provide you with something, but they're there to guide you कि you need to go this way, you need to do this, and it's basically a homely feeling that they want to give. Okay, Nothing so it's specific okay. like racism face or whatever anything. It's just to feel like very homely, like you're with your family. That's ओके, it. तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग. आई गेस बाकी स्टेट वालों को भी करना चाहिए. एंड काइंड ऑफ डिबेटेबल है कि अगर सब अपना अपना ही बना लेंगे तो मे बी इट वुड अफेक्ट द यूनिटी. If you see, there are like a lot of other unions as well. Like Sikkim community have their own. Okay. Tibetan community have their own. Meghalaya, like I mentioned, Meghalaya Student Union. So there can be this one factor is because racism face करते हैं. Exactly. Yes, racism face करते हैं. Like you wouldn't see a Bihari community Exactly, or a yeah. Punjabi community. Yeah. So even if you see like people don't know much about these Northeast, like Northeast is a beautiful states and everything. It's called Seven Sisters Fall, where you have Assam, Arunachal Pradesh and a lot of things. So racism face करते हैं इसीलिए, and that can be one of the factors कि वो लोग homely feel कराना चाहते हैं. So मेघालय स्टूडेंट यूनियन हो या टिबेटन कम्युनिटी हो और मे बी सिक्किम के लोग बना रहे हैं, सो येस इट इज़ बिकॉज रेसिज्म फेस करते हैं, एंड इट्स ऑल्सो कि फैमिली वाला जो मैंने पहले बता दिया वो. राइट. सो कहीं ना कहीं दे नीड द ओन, आई वुड से कि उस जगह के लोग उनको मिलना ज़रूरी होता है टू फील होमली, बिकॉज दे डोंट फील दैट एक्सेप्टेड. बिकॉज यू वोंट सी अ यूपी का कम्युनिटी, यू वोंट सी बिहार का कम्युनिटी, और you won't see someone कह रहे दिल्ली वाले community because they're more accepted as in. Exactly. True. So I don't know, you are also I would like to mention that Sanjana is my best friend. So I have never felt कि ऐसा acceptance का कोई problem हुआ in both of us. So it's just in our minds, don't you think? कि Yeah, I wouldn't completely blame the mainland people.
It's also because some communities, like I come from the northeast background, okay? So if you like listen to me, my Hindi is far better Yeah. than others. So this has something to do Okay. with your father being in army also. Yes, father being in army and me going to army public school and meeting Okay. people, students from different states and knowing their culture. Yeah. So it's also because like I was having a conversation with a girl, Okay. and she was Punjabi. Okay. So I just met her and both of us were having a conversation, and she told me, आप तो cool हो, but आपके community के बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं हो सकते? So I said, what do you mean? And she said, आप लोगों के यहाँ पे हमें ऐसा feel होता है कि even though अगर हम approach करने की कोशिश करें तो एक attitude रहता है. तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इज इट बिकॉज रेसिज्म फेस करे और इज इट बिकॉज नॉर्थ ईस्ट पीपल थिंक कि दे आर सुपीरियर और एनीथिंग, बट आई गेस इट गोज हैंड टू हैंड. इट्स लाइक यू गिव रिस्पेक्ट, यू टेक रिस्पेक्ट. वैसे ही अगर आप बात करोगे तो वो भी बात करेंगे. बस ये है कि अगर आपको इज्जत नहीं मिलती तो ठीक है, स्पेस मेंटेन कर लो या फिर नहीं बात करो, बट ट्राई तो करना ही चाहिए फ्रॉम बोथ दी एंड्स. इट्स नॉट कि सिर्फ एक बंदा ट्राई कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा. जैसे इफ यू लुक एट मी, आई एम गुड विद everyone. Like everyone, I have Bihari friends, I have Punjabi friends, I have North Eastern friends, and I feel comfortable with everybody. But if you see North East ke log, they're not comfortable with everyone. Somehow I think it's a spiral, you know, कि कभी उनको इज्जत नहीं मिली तो नाउ दे स्टे अवे ओनली, एंड उस कारण कहीं ना कहीं गैप बढ़ता ही जा रहा है. एंड अबाउट दैट हिंदी वाला थिंग कि अरे यू कैन स्पीक नाइस हिंदी, देर इज़ अ थिंग जब भी हम साथ में हैंग आउट करते हैं गाइस, तो इट ऑलवेज हैपन कि पीपल आर वेरी यू नो सरप्राइज्ड व्हेन संजना स्पीक्स इन हिंदी. सो आई विल टेल यू अ वेरी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट. इट्स फ्रॉम हवेली. ओके, तो संजना हवेली गई थी एंड she talked in Hindi. Will you please tell what happened? Okay, so I went to Haveli with my roommate. I really wanted to explore Haveli. So I went there and I was buying those imported candies. So this person came to me and said, आपको इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है, आप कहाँ से हो? So it took me back to the first day I came to university. People asking me, where is Northeast? आप कहाँ से हो? आपकी हिंदी बहुत अच्छी कैसी है? So I didn't want to explain the whole thing again. So I just ended up saying मैं चाइना से हूँ. And they were like, okay, तो आपकी हिंदी अच्छी कैसे है? So I said, मैंने 3 साल का कोर्स किया था हिंदी सीखने के लिए. So now this person thinks I'm from China, and it was like a funny moment. Everybody was laughing there. My friends were laughing. But till now he thinks I am from China and मैं इंडिया आई हूँ, यहाँ पे मेरा घर बस गया है. That was the incident. तो हवेली वाले भैया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, हमारी संजना चाइना से नहीं है, बट इट्स ओके, एटलीस्ट इट वाज फनी. सो कमिंग टू द टॉपिक, अभी जो है मणिपुर में काफ़ी वायलेंस हुआ, यू नो, एंड इट्स रियली वेरी शेमफुल फॉर एवरी वन इन द कंट्री कि नॉर्थ ईस्ट कंट्री का इतना इम्पॉर्टेंट एंड इतना आई वुड से यू नो नॉन नेग्लिजिबल ये है पार्ट है, and still Manipur violence came out very late. So do you feel disheartened being a northeastern कि यार लोग ने ध्यान ही नहीं दिया? ये चीज़ का बुरा लगा कि जब बहुत कुछ खराब हो गया तब जाके लोगों को पता चल रहा है कि मणिपुर में ये इशू चल रहा है, जबकि ये बहुत पहले से ही पता हो जाना चाहिए था. Like I don't see government there doing anything. Like फीमेल्स को वो लोग रेप कर रहे हैं. इट वॉज जस्ट अ मैटर बिटवीन 2 communities, द कुकी एंड द मेइते. who are one मेइते कम्युनिटी आर द हिंदूज एंड कुकी कम्युनिटीज आर द क्रिश्चियंस. तो अगर हिंदू क्रिश्चियंस के बीच में इतना कुछ हो रहा है, लाइक दे आर द रेसिडेंट्स ऑफ मणिपुर. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट वो लोग एक साथ रह रहे हैं, एक दोनों का हेल्प, वो लोग एक दूसरे का हेल्प वो बाद में करेंगे. बट आई डोंट नो कि क्यों ये सब हुआ. बट ये भी है कि द जो नजरे में जो नज़रिया जो है लोगों का एंड जो भी था वो बहुत लाइक लेट आया कि उन लोगों को ये लगा कि इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं मणिपुर इशू. मतलब वो कुछ तो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लप्पू सा सचिन. लाइक डू यू इवन थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट कि कौन पाकिस्तान से आया या किसकी लव लाइफ में क्या चल रहा है? एंड यहाँ पे लोग मरे जा रहे हैं, यहाँ पे दे आर लाइक
लाशें बिखरी हुई है, वहाँ पे लोगों का रेप हो रहा है, फीमेल्स लोगों को लाइक नेकेड तुम लोग ऐसा घुमा रहे हो, एंड उस इशू को डायरेक्ट ना करके तुम ये सब कर रहे हो कि कौन पाकिस्तान से आया, किसका लव लाइफ क्या चल रहा है, एंड इवन जर्नलिस्ट आर लाइक टेकिंग इंटरव्यूज वहाँ का एंड नॉट एड्रेसिंग दिस इशू. तो इस चीज़ का बहुत बुरा लगा. एग्जैक्टली जब उर्फी जावेद, राखी सावंत को हाँ. कंटिन्यूअस क्लाउट मिलता है. इफ मलाइका अरोड़ा वॉक्स आउट ऑफ द जिम, इट्स अ कंटिन्यूअस क्लाउट थिंग. बट जब रेसिज्म होता है, व्हेन स्टूडेंट्स फेस इशू, थिंग्स लाइक दैट, व्हेन women डज नॉट गेट जस्टिस, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इवन एज जर्नलिस्ट दे लीव इट, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड इट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जर्नलिस्ट की गलती है. बट हाँ, डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इतना बड़ा हिस्सा होने के बाद भी कहीं ना कहीं आज भी नेग्लेक्टेड है. अभी भी हमें जब भी मूवीज़ देखने मिल रही है तो हमें कहीं ना कहीं सुपरस्टिशन से कनेक्ट करना पड़ रहा है टू मेक इट मोर हैपनिंग, बट इट शुड बी मोर नेचुरल टू द मेनलैंड इंडियंस. So thank you so much, Sanjana, for coming on our show, and would you like to say bye bye to our audience? Hello, it's been a lovely time, and thank you, Sakshi, for having me in your show, and thank you. See you later. Bye.